Good morning, students. Now we are going to move forward in our chapter that is important of documents used in the formation of company. Here we'll come to know that what are the necessary documents which are required to form a company. Now, the first document is memorandum. As I told you in the earlier video that we'll be discussing about memorandum of association and article of association. So let us discuss this. So what is memorandum? Now, the memorandum of association is the principal document of the company. Mean this document is the main document. The first document which will be prepared by the company will be memorandum of association. Okay. Now it is known as the charter of the company. Charter means given power. See what are the powers of the company beyond which the company cannot operate. ओके तो यहाँ पर पावर डिसाइड होती है ठीक है तो चार्टर मीन्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ पावर विच इज बीन गिवन और अलॉटेड टू अ कंपनी टू डू इट्स एक्टिविटीज. Now it contains the power and the objectives of the company. So what are the objectives? Suppose we are making a chocolate confectionery type of company. So our objective that we will be making all type of chocolates. We can write a objective like that. Okay. Or all type of stationery items in case we are establishing a company like Camlin or Cello like that. Okay. Now it also describes the scope of operation of the company. It can be altered only according to the provision made the under the Companies Act regarding its alteration. Now see, it describes the area or scope. Area scope means area of operation. So where whatever we are going to write in our objective clause, that is going to be our operating area. So within suppose you are writing all type of beverages or all type of chocolates, and suppose we are making then something else like we are making some cloth manufacturing or some type of chemical we are trying to make. So this is not allowed because what are our objective for making our objective which we have written is all type of chocolates, and if you are making something else in your area or operating outside this scope, then it is not allowed here. Now if you want to make something else, then you will have to make changes in the memorandum. So it is called as alteration. You'll have to alter means to change. Okay. So alter, you will have to alter according to the Companies Act. You'll have to tell the registrar along with the application again that what changes you want to make, and then it can be done. So it is not like that it is a rigid instrument and you cannot change anything in it. It can be changed, but you will have to inform the registrar. Okay. Now memorandum of association provide information to outsider such as creditor, supplier, etc. to know the limitation and scope of the company dealing. It can known as the doctrine of outdoor management. So all these creditors, suppliers, and all these people are outside. Okay, so these are the entities which will be dealing from outside. So this is not related to the internal management of the company. This is the document which is simply made for dealing with the outdoor management like all these suppliers and all these creditors. So they will be reading our document and they can come to know that what are our powers and what we cannot do. So even they can know that what is the scope or area of production of any company. Now the content of this memorandum of association. So this suppose this is a form and you'll have to fill that form. Okay, तो उसमें क्या लिखा रहेगा उस फॉर्म में. Now we are going to discuss that. Name clause, like आपने admission form भरा होगा, must be filled some kind of admission form somewhere. So what we used to do, we used to write our name like class, father's name, like that it is. So it is also kind of form. Now the clause contains, this name clause definitely contains the name of the company. So the clause contains the complete name of the company. Okay. So whatever the name is been chosen, we can write the name there. Okay. So the name of the company must end with word limited. This is important. Okay. ये जो कंपनी आपने बनाई, कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड नहीं होना चाहिए. दैट इज समथिंग एल्स. वो प्राइवेट कंपनी होती है. यहाँ पर लिमिटेड होना चाहिए. एलटीडी लिखा हुआ रहता है. ठीक है. उसी को आप बोलते हो कंपनी फॉर्म में. ठीक है. उसको अपन बोलते हैं कंपनी.
Now, in case of public limited company and with the word private limited in case of private limited company, है ना। तो लिमिटेड कंपनी को पहचानना है तो उसके वर्ड को गौर से देखो, उसके लास्ट में एलटीडी लिखा होगा। अगर पीवीटी भी साथ में दिखता तो क्या समझ जाओगे कि वो प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, द सेम, the name should not be similar or identical to the name of other company. See, we are giving this form to the registrar, हम फिलअप करके किसको दे रहे, रजिस्ट्रार को दे रहे। तो रजिस्ट्रार जब देखेगा उसको तो क्या चेक करेगा, कहीं आपका नेम जो है कंपनी का वो आइडेंटिकल तो नहीं, मिलता जुलता तो नहीं किसी और कंपनी के साथ। अगर ऐसा है तो वो आपको बोलेगा कि नेम को चेंज करो। ओके, now the name should not contain the word cooperative. Now whatever the name you are keeping for your company, it should not have that word cooperative, because cooperative means something else. Okay, cooperative society आपने देखा तो वो एक अलग एंटिटी हो जाएगी, तो ये वर्ड नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की भी किसी एजेंसी या इस तरह का नाम उसमें नहीं दिखना चाहिए। ओके, so the name should not convey any connection link to the company with government department. Okay, तो ऐसा भी नाम नहीं होना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि आपका नेम में कहीं ना कहीं दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो नेम शुड बी कंप्लीटली सेपरेट। नाउ अल्टरेशन ऑफ द नेम क्लॉज। अल्टरेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ, बदलाव करना है ना, चेंज करना। अगर नेम में बदलाव करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशंस बाय ऑब्टेनिंग रिटर्न अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दे कैन डू इट, दे कैन चेंज द नेम, नाम को बदला जा सकता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी बस, ठीक है। नाउ डोमिसाइल क्लॉज, डोमिसाइल क्या होता है, जहाँ के अपन रहवासी होते हैं। तो कंपनी भी कहीं बनी होगी तो वो भी वहाँ की रहवासी है, मीन्स रेसिडेंस वहाँ का कहाँ का है, तो सिचुएटेड कहाँ पर आपकी कंपनी, ये उस बारे में, ठीक है। दिस क्लॉज कंसिस्ट द नेम एंड नेम ऑफ द स्टेट, किस राज्य में आपकी कंपनी है, इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, और कौन सा उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना। इट इज necessary because the company gets the registration from the states only। अब जिस स्टेट में भी हो तो वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपकी कंपनी का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहीं पे अपना एड्रेस कहीं वहीं का होगा। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी आर केप्ट। नाउ सी, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है ये वो प्लेस रहती है जहाँ पे कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ओके, सो द कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस when it starts its business activities or within 30 days of its registration, whichever is earlier। So every company must have this registered office, कहीं ना कहीं वो registered office आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आप activities business की सारी operate करने वाले हो, ठीक है। now alteration, if you want to make changes again, तो क्या किया जा सकते हैं, जैसे कि हम ऑफिस चेंज करते हैं ना, सपोज महंगा पड़ रहा है, कहीं रेंट पे लिया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पे द रेंट, तो पॉसिबल है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं उस रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो वो चेंजेस भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। So the situation clause can be changed in following way: by passing a special resolution and by obtaining sanction of the registrar of both the states if the office is to be shifted from one state to another. Now suppose you want to shift the state, suppose you are changing from Madhya Pradesh to, you are going to Rajasthan and shifting the address, so you will have to pass a special resolution एंड इट मस्ट बी सैंक्शन बाय द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है उसके लिए, और उससे इन्फॉर्म हो जाएगा, रजिस्ट्रार उसको अगर परमिट कर देता है तो चेंज हो जाएगा आपका एड्रेस। ओके, नाउ बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन only if office is to be shifted from one town to another in the name in the same state। now अब यहाँ पर रजिस्टर की परमिशन कब नहीं लगेगी, देखो परमिशन तब नहीं लगेगी जब एक सिर्फ एक टाउन में ही आप चेंज कर रहे हो, लाइक यू आर स्टेइंग इन रतलाम एंड यू वांट टू चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, देन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली इट कैन बी डन। वहाँ पर सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन एक पास किया जाता है, इट्स काइंड ऑफ लेटर जिसमें लिखा रहता है कि हम इस तरह से करेंगे, हम चेंज कर रहे हैं ऑफिस को, और उसके थ्रू ही चेंजेस किए जा सकते हैं। Now, by passing an ordinary resolution, if the office is to be shifted from one locality to another within the same town। Now, एक लोकेलिटी से अगर आप दूसरे जगह जा रहे हो, सी टाउन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट यहाँ पर अगर आप एक ही लोकेलिटी से ही चेंज कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ही हो जाता है। सो दिस कैन बी डन इजीली, मीन्स चेंजेस हो सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उद्देश्य, आपने कंपनी क्यों लगाई है उसको बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट।
It is the most important clause of the memorandum of association. It contains the main object of the company and the secondary objective which the company may pursue. Okay, so what are the main objects? Main objects वो रहते हैं जो कि कंपनी जिसके लिए बनाई गई है. से फॉर एग्जांपल चॉकलेट कन्फेक्शनरी अपन ने स्टार्ट की है. वी आर स्टार्टेड ए चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सो व्हाट वी विल राइट, हम क्या लिखेंगे वहां पर? हम लिखेंगे कि ऑल टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम वो बनाएंगे. ठीक है, हर तरह की चॉकलेट हम बनाते हैं. तो दैट इज अ चॉकलेट कन्फेक्शनरी. और जो सबसे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है, जो आप फ्यूचर में हो सकता है ऐसा करो, तो वो चीज़ भी हो सकता है. उसके अलावा लाइक वी कैन मेक समथिंग else like biscuits or some other kind of form of wafers and all, या फिर और कुछ चीज़ें हम बनाना चाहते हैं तो वो हम ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिख सकते हैं. दिस क्लॉज डिफाइन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. मीन्स यहाँ पर स्कोप एरिया, लाइक विद इन विच एरिया यू विल बी ऑपरेटिंग. सो वी हैव रिटन ओवर देयर कि चॉकलेट्स बनाएंगे तो वही हमारे एरिया है, हम उसके बाहर कुछ नहीं बना सकते. अगर ऐसा हो कि हम कुछ और बना रहे, लाइक वी मेकिंग समथिंग सोप्स और जस्ट ऑल दिस काइंड ऑफ क्रीम्स और टूथपेस्ट, देन इट इज नॉट अलाउड. आप अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर काम कर रहे हो, ये माना जाएगा. सो द फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का, जो आपने लिखा है वहाँ पे, इट मस्ट बी लीगल. कानून की नज़र में सही होना चाहिए. लाइक वी विल बी मेकिंग सम काइंड ऑफ वेपन्स और ये इस तरह के ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा वहाँ पे. ठीक है, एक लीगल चलेगा, लीगल मैटर पे होना चाहिए. तो जो भी लीगल है वो आपको करना है. द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ. अब ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए. अपनी कंट्री में बहुत सारे नियम होते हैं, तो अगर उसके अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो, आपका कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो वो भी नहीं चलेगा. नाउ द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इमोरल. इमोरल मीन्स जो नैतिक नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि गलत ऑब्जेक्ट के उसमें आ जाता है, और इमोरल होता है, नैतिक नहीं माना जाता. नाउ ऑल्ट्रेशन इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. अब जो ऑब्जेक्ट क्लॉज भी अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या स्पेशल रेजोल्यूशन ही देना पड़ेगा एंड ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड. तो कंपनी लॉ बोर्ड, सो इसकी परमिशन आपको वहाँ पे चाहिए रहेगी, और वहाँ पर अगेन आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन देना पड़ेगा और वो परमिशन वहाँ से लेनी पड़ेगी. देन ओनली यू कैन चेंज योर ऑब्जेक्टिव क्लॉज. नाउ लाइबिलिटी क्लॉज. लाइबिलिटी में हम ये बताते हैं कि हमारी कितना पैसा बाहर वालों को पे करना पड़ेगा. तो दिस इज अ लाइबिलिटी क्लॉज. तो दिस क्लॉज डिफाइन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स अप टू द पेमेंट ऑफ द डेब्ट विल बी अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स विच आर बीन इशूड. जितने रुपए के शेयर इशू कर रखे हैं उतने तक ही आपको क्या करना है? पे करना पड़ेगा बाहर वालों को. Now the liability of the company is limited to the extent of unpaid amount of the share capital. Now शेयर कैपिटल पे जो पैसा अभी तक नहीं भरा है किसी ने, तो वो पैसा भी रिकवर किया जा सकता है. ओके, क्योंकि हो सकता है कुछ पैसा अभी तक शेयर पे आया नहीं हो, तो उसको रिकवर किया जा सकता है डेप्ट को पे करने के लिए. Now for example, if a person having 1000 share and the face value is 10 rupees. यहाँ पर देखना फेस वैल्यू कितनी, यहाँ पर 10 रुपीज है. ओके, एंड ही हैज पेड 7 रुपीज. अभी पूरा 10 रुपीज पर शेयर उसने पे नहीं किया, उसने अभी 7 रुपीज के हिसाब से ही पे किया है. तो अभी भी 3 रुपीज उससे और लिए जा सकते हैं. ठीक है, जब जब कंपनी वाइंड अप होगी, मतलब कंपनी को जब हम शट डाउन करेंगे, बंद कर देंगे. ओके, वाइंड अप करना मतलब कि एक तरह से पूरा बेच देना, सब कुछ है ना, क्लोज कर देना कंपनी को, लॉ के अकॉर्डिंग होता है पूरा. ठीक है, तो इसमें जो लाइबिलिटी निकल के आएगी, तो कितना रिकवर कर सकते हो? उस शेयर के हिसाब से हम उससे, जो भी शेयर होल्डर है, उससे 3,000 रुपये और ले सकते हैं. ओके, दिस इज द थिंग. और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कुछ गारंटी भी ले रखी है उसके मेंबर्स ने कि हम इतना पैसा और कंट्रीब्यूट करेंगे, देन इन दैट केस वो एक्स्ट्रा मनी उसके डेप्ट्स को पे करने के लिए, फिर कर्जा जो भी है उसको पे करने के लिए यूज की जा सकती है. ना ऑल्ट्रेशन ऑफ द लाइबिलिटी क्लॉज. तो लाइबिलिटी क्लॉज जो कि अपनी देनदारी बनती, द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू द आउटसाइडर. so the company wants to make an alteration in this liability clause, then it must pass a unanimous resolution in the meetings of its members. Unanimous decision will be simply done by consent of all the members, that whether we should go for this or not. इफ बिकॉज यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा ला सकता है या फिर कंट्रीब्यूट कर सकता है कि ज़्यादा डेब्ट भी हम पे कर पाए, तो इसके लिए सबकी रजामंदी यहाँ पे होनी चाहिए. without it it cannot be done. Okay, now
द कैपिटल क्लॉज, कैपिटल इज दैट मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसको ही बोलते हैं। तो कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या लिखा रहेगा, द कैपिटल क्लॉज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। कंपनी रजिस्टर्ड होती है जिस अमाउंट से जो आप लिखते हो उसी को बोलते हैं क्या, कैपिटल। ना शेयर कैपिटल मतलब कि कितने रुपए तक के शेयर अपन इशू करने वाले हैं, ठीक है। जितना पैसा हम सोचते हैं कि हम इतने तक के तो इशू करेंगे, इतना पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम उसको वहाँ पे मेंशन करके रखते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि हमने शेयर कैपिटल मान लिया 1 करोड़ का, और से फॉर एग्जांपल इसको इजी कर लेते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कंपनी बाय 10 lakhs। तो 10 lakhs इज द शेयर कैपिटल, और 10 रुपीज, ये जो 10 लाख का जो शेयर रहेगा, मतलब पूरा अमाउंट है, उसको फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपीज। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10,000 शेयर। अब ये जो शेयर है इतने ही अपन ला सकते हैं कंपनी के लाइफ टाइम में, ओके। तो द कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड और ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल। तो ये इसके अलग अलग नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड ऑथराइज कैपिटल ओनली। सो a company can issue only that number of share which are authorized by its memorandum। तो कंपनी अपने लाइफ टाइम में उतने तक के ही शेयर लेकर आ सकती है। द ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, क्या हम कैपिटल क्लॉज में चेंजेस कर सकते हैं? तो यस, द कंपनी कैन alter its capital clause by passing a special resolution and by obtaining the approval of कंपनीज लॉ बोर्ड। तो अगेन कंपनी लॉ बोर्ड के अप्रूवल के थ्रू एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम कैपिटल क्लॉज को भी चेंज कर सकते हैं। Now, association subscription clause. So this clause contains the declaration by the director stating that we, the several persons whose name and address are submitted, are desirous of firm being into a company and in accordance with memorandum of association, and we undertake to take the qualification share. This declaration must be signed by all the directors of the company. Now see, subscription clause means all this board of director who have purchased the share, जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और वो सब मेंबर्स हैं उस कंपनी के, तो ये मेमोरेंडम में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, दे मस्ट डिक्लेयर दैट क्वालिफिकेशन शेयर उन्होंने बाय किए, उनकी पूरी अप्रूवल के साथ में ये हुआ है, उनके एग्रीमेंट के साथ में ही ये हुआ है, और इसके बाद में उन सबको उस पे डॉक्यूमेंट पे डिक्लेरेशन पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके सब पर जो भी लोग हैं जो भी बने हैं, तो उनको क्या बनना, उनके जो नेम एड्रेस वगैरह सब कुछ सबमिट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आता है ना। अल्टरेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर चेंजेस, तो दिस क्लॉज कैन नॉट बी अल्टर्ड, आप इस क्लॉज को चेंज नहीं कर सकते हो। नाउ द सेकंड डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में रहता है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा। इसको जैसे कि मेमोरेंडम को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, सो दिस आर्टिकल इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ indoor management, okay, that means internal management of the company. Now, Article of Association contains rules and regulations regarding the management of company's internal affairs. It defines the power, duties, and right of the manager officers. ओके, तो यहाँ पे सबके पावर, ड्यूटी, राइट्स मैनेजर्स के लिखे हुए रहते हैं, और कंपनी का इंटरनल मैटर कैसे हैंडल होगा वो सब लिखा रहता है। तो यहाँ पे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो चाहे ऑफिसर, उनको कितनी राइट्स है, ड्यूटीज क्या है, पावर क्या है, सब वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को इंटरनल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो उनको एक पावर, कितनी अथॉरिटी रहेगी, किस मैनेजर के पास कितना पावर रहेगा, और डिफाइंड रहता है। Now generally all the companies prepare their own article of association। अब क्या होता है, सारी कंपनियां जनरली खुद अपना आर्टिकल बनाती है, ठीक है। Now in case company do not want to prepare their own article of association, then they can select any one article of association given in table F of the Companies Act। अब ये जो कंपनीज एक्ट है उसमें टेबल एफ है, अगर कोई कंपनी नहीं बनाना चाहती है तो इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो उसमें से वो टेबल एफ में से कोई सा भी एक आर्टिकल चूज कर सकती है। इन टेबल एफ द कंपनीज एक्ट 99 मॉडल सेट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर गिवन। तो इसमें कितने 99 सेट ऑफ रूल्स है जो कि आप उनमें से चूज कर सकते हो आपकी कंपनी कौन सा लेकर चलेगी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, ओके। नाउ कंपनी कैन सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम दिस 99 सेट्स, ओके, ठीक है। The article of association must be signed by all the directors of the company. Now this memorandum was also signed by all the directors. Now this document also has to be signed by the directors. It must be duly attested by any two witnesses. Now यहाँ पर witness मतलब गवाह, गवाह भी चाहिए रहेंगे आपको, ठीक है। तो 2 गवाहों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। Now article of association is also known as the bylaws of the company और doctrine of indoor management। इसको doctrine of indoor management भी कहा जाता है, ठीक है। Now what are its contents? So the contents of articles are the amount of share capital and different classes of share। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट वहाँ लिखा रहता है और कितने अलग अलग तरह के क्लासेस ऑफ शेयर आप लेकर आओगे।
तो वो चीज़ वहाँ पे मेंशन रहती रहती है ना। तो अगर प्रेफरेंशियल शेयर वगैरह, तो ये सब चीज़ें अगर आप इशू करने वाले हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, तो यहाँ पे एक राइट क्या रहेंगे, अधिकार क्या रहेंगे शेयर होल्डर्स के, ये लिखा हुआ रहता है। ओके, लाइक वोटिंग राइट्स एंड ऑल, जो अधिकार मिलते हैं शेयर होल्डर को वो सब मेंशन रहता है। द प्रोसेस फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अब अलॉटमेंट मतलब शेयरों को बांटना, तो शेयर होल्डर में किस तरह से बटेंगे वो चीज़ लिखा हुआ रहता है। देन प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, अब शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम में आप लोगों को मिल जाएगा कि आपने इतने शेयर बाय कर रखे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे लिखी रहती है कि किस तरह से प्रोसीजर रहेगा शेयर अलॉटमेंट का। नाउ प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर अगर करना चाहते हो आप शेयर, एक जने से दूसरे जने को बेचना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। देन प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर मतलब शेयरों का हरण, मतलब कि सपोज somebody has not paid the amount on the share, अगर कोई अमाउंट पे नहीं करा है शेयर पे पूरा, तो कंपनी क्या करती है उसके शेयर क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, अपने पास रख लेती है, और जो भी पैसा पहले दिया है उसको वो कंपनी लौटाती नहीं है। फॉरफिट ऐसे ही होता है, शेयर रख के फिर उसको क्या वापस दूसरे जनों को देंगे और उससे फिर पैसा लेगी कंपनी, ठीक है। इस तरह के शेयर जो कि इशू होते हैं मार्केट में, तो उसको थोड़ा डिस्काउंट पे भी कभी कभी इशू किया जाता है कि कोई दूसरा खरीद लेगा उस शेयर को। ओके, नाउ प्रोसीजर फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो री इशू मैंने अभी बताया कि कंपनी ने जो फॉरफिट ले लिए, लोगों से छीन लिए और शेयर वापस ले लिए कि अब हम दूसरों को देंगे, तो उसको बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, और ये डिस्काउंट पे हो सकता है ना। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग, अब ये मीटिंग कब कब कंडक्ट होगी, कौन कौन सी मीटिंग होगी, वो सब प्रोसीजर उसमें लिखा रहता है ना। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, किस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है, किसको रिमूव करना है, सो तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर दैट थिंग, इट विल बी मेंशन। Then duties, power and remuneration of the director, so all these duties, powers and remuneration means payment of the directors, it will be mentioned here. Now procedure for declaration एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी, तो वो अगर कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम लोग कितना परसेंट डिविडेंड देने वाले हैं, या लाइक दैट। ओके, डिविडेंड क्या होता है, इट्स द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका एक पार्ट शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड। Now procedure regarding winding up of the company, प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी बंद हो जाना, तो उसका कंपनी को जब बंद कर रहे हो, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून की नज़र में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि आपने उसको रजिस्टर करके बनाया है। तो अगर आप उसको वाइंड अप करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो अगेन लॉ के थ्रू ही करना पड़ेगा, देन ओनली कंपनी इज गोइंग टू एंड। सो द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप इट्स अ लेंथी प्रोसेस, और वो पूरा प्रोसीजर वहाँ लिखा हुआ रहता है कि किस किस के एसेट्स लाए जाएंगे, या फिर कोई अगर गारंटी ले रखी है मेंबर्स ने, सो यू विल हैव टू गिव दैट एज वेल, क्योंकि कई बार लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, तो वो पैसा, फिर शेयर कैपिटल का पैसा, अगर कुछ एसेट्स कंपनी के नाम पे हैं तो वो रिकवर होंगे। तो वाइंड अप इस तरह से होता है कंपनी का, है ना। पूरा कोशिश की जाती है कि कहीं कहीं से पैसा निकले तो उसको पेमेंट सेट ऑफ करने में काम आ जाए। Now procedure regarding keeping the books of account and their audit. Now what will be the procedure of keeping the book of account? So book of account किस तरह से रखे जाएंगे, मेंटेन करे जाएंगे उसके बारे में, और ऑडिट मतलब अकाउंट्स इंस्पेक्शन, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आके चेक करेगा ऑडिट प्रोसेस वो कौन सी रहेगी, लाइक एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, उसके बारे में लिखा रहेगा। यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर अगर हैं तो कौन करेंगे, उनके नेम्स भी लिखे हुए रहते हैं। नाउ सील ऑफ द कंपनी, सील ऑफ द कंपनी क्यों जरूरत है, क्योंकि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि कॉमन सील रहती है, क्योंकि कंपनी कैसी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके हाथ तो है नहीं, तो वहाँ पे सील रहती है कंपनी की। सो वो सिग्नेचर का काम करती है। सो वो चीज़ भी यहाँ पर रहती है कि सील ऑफ द कंपनी कैसे रहेगी। Now, article means the article of association of the company is originally framed as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law for this act. अब ये कुछ नहीं, यहाँ पर बस चेंजेस अगर करना चाहें आप टाइम टू टाइम तो उसमें कर सकते हैं। सो नाउ दिस अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, कैसे है। Now the company may change its articles by passing a special resolution. Okay, यहाँ पे यह वर्ड याद रखना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर सकते हैं आर्टिकल्स को। सो द अल्टरेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर जो भी आप चेंजेस कर रहे हो तो मेमोरेंडम में के हिसाब से उसमें से कुछ कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसा मेमोरेंडम में आपने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा डिसाइड नहीं होना चाहिए कि जो उसको अफेक्ट करे, जैसे कि क्वालिफिकेशन शेयर्स वहाँ पे हमने लिख रखे हैं, तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल ज़्यादा कर दें कम कर दें, तो वैसा नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है।
बिकॉज वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर, तो कुछ ऐसा चेंज भी नहीं करना जिससे कि बाहर वालों के साथ में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अफेक्ट हो जाए। ओके, ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का खंडित होना, मतलब कुछ ऐसा लिख दें हम वहाँ पर जिसकी वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया आउटसाइडर्स के साथ में वो वॉइड हो जाए, गलत हो जाए। नाउ इट मस्ट बी इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अब ये कंपनी के हित में होना चाहिए, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो कंपनी को उससे फायदा होना चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, अब यहाँ पर ऐसा भी चेंज नहीं करना है कि लाइबिलिटी बढ़ जाए मेंबर्स की। ओके, मतलब लाइबिलिटी आप समझने लगे होगे कि देनदारी को बोलते हैं, जो आपको पैसा बाहर वालों को चुकाना है। Now, fifth point, if the alteration involves conversion of public company into a private company, then the approval of the central government must be obtained. Now see, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी से आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी करना है, जैसे कि पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड है। अब हम उसको चाहते हैं कि हम उसको पब्लिक कंपनी बनाएं, तो उसके लिए किसकी परमिशन लगेगी? लगेगी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, तब आप ऐसा कर सकते हो। ओके, नाउ डिफरेंस दिस आर्टिकल एंड दिस वन, so you can just read it from your book. Okay, so just let us read some of the 5 points of it. So what is the nature? So it is a charter, means power of the constitution of the company, यहाँ पर पावर दिखती है, यहाँ पे इट्स अ चार्टर कि कहाँ तक आप ऑपरेट कर सकते हो। और ये क्या रहता है, ये तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रहता है कंपनी का, ठीक है, ये इसका नेचर है। देन स्कोप मतलब कि एरिया क्या डिफाइन करता है, तो इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट पावर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो बिल्कुल मेमोरेंडम क्या दिखाएगा, पावर ही दिखाएगा ना आपकी, तो वो चीज़ दिखा रहा है, डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर ऑफ द कंपनी। ये क्या दिखाता है, डे टू डे ऑपरेशन किस तरह से होंगे, किसकी क्या ड्यूटीज है, राइट्स है, तो उसके हिसाब से कंपनी चलेगी, तो डे टू डे ऑपरेशन दिखाता है। देन स्टेटस क्या है इसका, इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इट सुपरसीड्स द आर्टिकल्स। तो ये मेन डॉक्यूमेंट होता है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, इसके बाद ये हम आर्टिकल बनाते हैं, और ये बनाना भी ज़रूरी है, इट इज़ कंपलसरी टू मेक। और इट इज़ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, ये सप्लीमेंट्री, इसको बनाए नहीं बनाए तो भी चलेगा। ओके, नाउ लीगल इफेक्ट, एक्ट बियॉन्ड दिस स्कोप आर वाइड, अगर आपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम किया तो उसको गलत माना जाता है। और यहाँ पर क्या है, एक्ट्स डन बियॉन्ड द आर्टिकल्स आर रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर, अगर कुछ गलत होता है तो उसको करेक्ट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। नाउ कंपल्शन, ज़रूरी होना, तो ये बनाना कंपलसरी है, ये बनाना कंपलसरी नहीं है। आप टेबल एफ से कोई सा भी एक आर्टिकल बना सकते हैं ना, 99 सेट ऑफ रूल्स हैं वहाँ पर। ओके, नाउ रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप किसका दिखाता है, इट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, और ये इनसाइड, ओके, इंटरनल रिलेशनशिप को दिखाता है, और ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में रिलेशनशिप को दिखाता है। ऑल्ट्रेशन, अगर बदलाव करने हो, चेंजेस, तो ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम इज डिफिकल्ट एंड लेंदी, ये मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट और लंबा प्रोसेस होता है, और यहाँ पर क्या बहुत इजीली होता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही हम चेंजेस कर सकते हैं। नाउ प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस आपको ज़्यादा नहीं करना है, प्रोस्पेक्टस आपको इतना ही करना है। ओके, क्या है प्रोस्पेक्टस? सी, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि हम इशू करते हैं। ओके, सो इसको क्या होता है, देखो, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी शेयर लेके आती है, ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट इशू द प्रोस्पेक्टस, जिसने भी शेयर इशू कर रखे हैं ना, तो उसके लिए क्या, उसको पहले प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टर एक तरह से एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट का काम करता है, और इसको बहुत ही लुभावने और बहुत ही ल्यूक्रेटिव मोड पे बनाया जाता है, कि जो भी इसको पढ़ेगा ना वो बिल्कुल फैसिनेटेड हो जाएगा दैट कंपनी इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ कंपनी, और उसमें तो पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहिए, और फिर वो उसमें पैसा लगा देते हैं। तो प्रोस्पेक्टस का यही पर्पस रहता है। सो इफ इट वांट्स टू मेक एन अपील टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर और डिबेंचर्स, तो शेयर लेके आई कंपनी या फिर डिबेंचर इशू करे, दोनों के केस में प्रोस्पेक्टस कंपनी लेकर आ सकती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। क्या है प्रोस्पेक्टस? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, अ नोटिस बोल लो, सर्कुलर इंफॉर्मेशन जानकारी, या फिर एडवर्टाइजमेंट बोल लो उसको, ठीक है। तो ये क्या करती है, इनवाइट करती है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी, ठीक है, कंपनी को ही बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसके शेयर या फिर डिबेंचर अगर कंपनी लेकर आ रही है तो ये एक इशू कर देते हैं प्रोस्पेक्टस, जिससे पब्लिक पढ़कर फिर इंटरेस्ट ले सकती है, कि अगर उसको समझ में आती है कि कंपनी अच्छी है, दे शुड बाय द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ सच ए काइंड ऑफ कंपनी और कॉर्पोरेट बॉडी, सो दे कैन डू इट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, दे मस्ट बी इन्विटेशन टू द पब्लिक एट अ लार्ज, तो पूरे लोगों में इनवाइट किया जाता है, न्यूज़पेपर में भी आता है प्रोस्पेक्टस, वेबसाइट पे भी दिखता है ना। इनविटेशन मस्ट बी मेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के बिहाफ पे ही आएगा, वो कंपनी के लिए ही आ रहा है ना, तो उसके बिहाफ पे ही आएगा, ठीक है। देन इनविटेशन मस्ट बी
टू सब्सक्राइब और टू परचेज शेयर और डिबेंचर। अब इसका पर्पस क्या होता है, शेयर और डिबेंचर्स परचेज करने के लिए ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो नहीं भी करोगे तो एलिमेंट फीचर्स चलेगा, बट रिमेंबर दिस पार्ट फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम योर दिस विक्योरी बुक, यू कैन डू दिस मच कि क्या है, एक सर्कुलर है, नोटिस बोल लो, जानकारी की इंफॉर्मेशन है कि लोगों के पास पहुंच जाए कि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं और लोग इंटरेस्ट दिखाने लग जाए उस कंपनी में पढ़ के उस प्रोस्पेक्टस को। सो दैट्स ऑल, दिस वाज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर्स, so we'll be continuing later on with our third chapter. So till then, thank you. If you have any kind of doubts, you can ask me.